give them a huge round of applause as they begin the discussion. Thank you. Thank you. We will be starting by taking certain questions from 5 of our lady entrepreneurs here. Okay? And before I ask you, Pragya ji will be telling you that what are the different things which are included in this conclave, so that you can ask the questions accordingly. You know, we'll take 5 questions and we have all experts here, and these experts will be answering your questions apart from giving their valuable insights. Hi friends, all my dear charming young ladies who are trying to build up, कहीं ना कहीं पहुंच चुकी हैं. आप लोग सब सोचती होंगी, इतनी बार गवर्नमेंट बोलती है विमेन के लिए ये पॉलिसी वो पॉलिसी, राइट? आप लोग जानना चाहती हैं कि गवर्नमेंट हम लोग को किस तरह सपोर्ट करती है? यस? कितने लोगों को ऑलरेडी मालूम है? आई डोंट सी एनी रेज ऑफ हैंड्स. ओके, सो आज हम लोग के साथ अनुपम गायन जी हैं. ही इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट बॉडी NSIC, which is the nodal agency to actually help all the entrepreneurs get seed funds and acceleration funds. They are the growth partners. अभी कुछ दिन पहले अनुपम जी ने बताया कि हम लोग विमेन के लिए बहुत काम कर रहे हैं. तो मैंने वही कहा कि हमारी इतनी सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर उनको एटलीस्ट पता चले कि हम लोग क्या क्या पॉलिसी सपोर्ट कर रहे हैं. तो कैन वी टेक द डिस्कशन ऑन दिस लाइन? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग अपनी लाइफ में ग्रो करें, तो कंटिन्यूसली अपस्किलिंग वर्कशॉप्स भी करते रहें, सो दैट वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग. बिकॉज अगर हम लोग को नॉलेज ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे. सो ओवर टू अनुपम जी. पहले अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं. ही इज़ देयर टू आंसर रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी सपोर्ट, एंड he is also going to tell you what NSIC does. So we have, from the horse's mouth, we'll listen to everything. So yes, before sir speaks, I would like to ask that what are the queries, what are the doubts which you all have regarding government schemes, about NSIC, or what kind of supports will be available to you, because you all have already started your business, I'm sure, but you would like to scale it up. You know, that is why we are here and sir is here. So is there anybody who would like to ask a question before sir would tell more about the schemes he has? Any of you ladies, please ask, because we are all amateurs, you know. We have come here to learn more. You know, learning never stops. So you can always ask a question. Is there a question, or should we start with our speakers? Good evening. So basically, my name is Mehek Rupramka. I am a woman entrepreneur and I deal in gifting. So I wanted to understand, therefore, any kind of seed funding, is it like a new entrepreneur or you're building a business, that's when you get loans and all? Or is it like a developed a few months or a year old? What are the formalities and how government supports us? For everybody, all the respected panel distinguished, and Sushilji, veterans, our CWBT members, and all the entrepreneurs. Actually, the question, I am coming back to the topic. So we are questioning for the funding of our startup companies and new companies. So there are various stages of in startup companies. So it is from ideation or concept to ideation, then as producing or giving services, then we are going for the growth stage and then the maturity. So initially, what do you do normally? If you go to the, always you thinking, why don't you go to the bank? But if bank is going to give the loan, they are thinking, seeing various parts. It is not easy to get the bank loan initially. So when it is ideation process, what we do, we invest our own or we are trained from families. We do the initial basic things. Then after a certain time, we are going for angel investors or other funding options. A lot of funding options are there. So who can go the initial funding part. Then during the growth stage, when your concept is market acceptable, you are doing some billing or build some customers, then we are thinking for the growth stage funding, have the venture capital funding or other investors come into pictures. NSIC, Government of India has given us 10,000 crore fund, which is called SRI fund. We are also father of fund. So NSIC has created a 100% subsidiary companies. It is called NSIC Venture Capital Fund. If you go our website nsic.co.in, on right side corner there is a NBFCL.
So it is our 100% subsidiary who is handling this 10,000 crore fund. Since we are father of fund and we don't have this right infrastructure to identify whether any business or any venture capital or any startups is viable or not. So this fund is created not only for the MSMEs but also for startup also. Any MSME or any startups can get a fund from here. They don't have to give any security. No security is there. But government will take the equity stake from here. So what is the purpose of creating 10,000 crore fund? Because you see, we are giving fund to daughter of fund, all the ventures capitals. So we have enlisted around 62 empaneled VCs are there, almost maximum Mumbai based, around out of 62, 45 or 50 from Mumbai and others from Delhi, Bangalore, these places. So how do we do? Government of India giving 10,000 crore fund and giving the conditions to the VCs or daughter of fund that you will contribute 80%, government will give 30%. So from 10,000 crore fund, it will 5 times more. मतलब 10,000 crore NSIC का हो गया और जो VC आएगा वो 14,000 crore लेके आएंगे. How they will convert the fund? The VC will collaborate fund from the Hong Kong based or Dubai based or Singapore based or HNS companies. How the role of the VC? VC will identify the business as per various segment, health tech, then fintech or whatever you are part of the business. They will identify, they will see whether potential is not or not. So accordingly they invest from 2 to 10 crore from NSIC part and it will go up to 10 to 50 crore initial investment purpose. So they will take the equity. So before diluting an equity, I suggest everybody, so create the values so that your valuation becomes more. So how to create the value? Suppose nowadays it's 5 crore companies. So you need to understand how it can make 100 crore. Because our mindset is that we want to make, government want to make unicorns. What is unicorns? Unicorns is nothing but a valuation of 10,000 crore. And we always ask that go for a lightweight model. Means no capex, not very high cost, but you will capex model like OYO, Uber, that's the concept. So that initial your capex part will be low, OPEX part will be high to expand your business. So how do we do? We give the handholding support. So when we come some idea with us, we give our inputs to you. How can we fine tune? How our business can be more valuable? How the integration part? In management, we understand the integration, back integration, forward integration, and the linkages. So we tell you that this is the part where you can now do these things, do this outsource part, do this part, value chains. So in the value chain analysis, their role is the priming factor. Sir का presence जो है, it shows that they are committed to fund us, and we at MASA are their extended arm. तो किसी भी वुमेन को कोई भी तरह की स्केलिंग की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, तो दे कैन अप्रोच हर. सर के जितने फॉर्म्स हैं, सारी पॉलिसीज़ हैं, वी हैव ऑलरेडी ट्रेनिंग अबाउट देम. एंड हम लोग के थ्रू भी आप एकदम आराम से हम लोग आपके सारे पेपर्स वगैरह रेडी करके सर के साथ अप्रोच कर सकते हैं. दे हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर फंडिंग. कैसे काम करें? स्केलेबल क्या होता है? आज मैं यह धंधा कर रहा हूँ, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर कोई भी जगह करना मौका होना चाहिए. इसको स्केलेबल. वैल्यूएशन क्या होता है? एक बिजनेस चेन, सप्लाई चेन. একটা হচ্ছে पीछे से हम क्या लेंगे, सामने क्या देंगे. सामने मेरे कौन हेल्प करेगा? ये जो पूरा टीम है ना, दे हेल्प. तो मुझे ये पता होना चाहिए सबका पहले क्या है, मैं जो प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ वो बेचूं कहाँ, आई हैव टू सेल माय प्रोडक्ट इन व्हिच सेगमेंट. तो मेरे पास वो सेगमेंट पता होना चाहिए. मार्केट में आप देख रहे हैं ऐसे 10 बार ऑलरेडी कंप्यूटर है, तो शुड आई गो विद देम? तो मेरे को कुछ वैल्यूएशन जरूरी है. मैं नया क्या लेके आ रहा हूँ, क्या मैं सर्विस दे रहा हूँ, और मैं जो सर्विस ले रहा हूँ करोड़ का कैसे भलाई होगा. और आज तो करोड़ का भलाई होगा, अगला दिन ग्लोबल में कैसे भलाई होगा. साउथ अफ्रीका हो, अमेरिका हो, वी आर इन द ग्लोबल विलेज, छोटा जगह में बैठा हुआ. तो मेरा माइंडसेट ऐसे होना चाहिए, आज जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ इसका थ्रू किससे क्या भलाई है. सब बोलते सर क्या बिजनेस करूँ, 1000 अपॉर्चुनिटी है, देखो ना क्या क्या नहीं है. इनका जो क्लोथ देखो, समथिंग यूनिक, ही इज द ओन ब्रांडिंग इज डूइंग. और ये जहाँ जाएंगे उनका ब्रांड छप जाएगा. तो जब जाएंगे मार्केट में, जब खुद का प्रोडक्ट खुद नहीं संभाल करेंगे तो नहीं हो सकता. तो लोकल फॉर वोकल, ये गवर्नमेंट अब जो स्लोगन दे रहा है ना, भाई अपना देश का प्रोडक्ट हमको यूज करना है, बाहर का जो प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट बनाओ, बना के इसको लेके आओ, बट वो प्रोडक्ट का दम होना चाहिए. ऐसे कुछ करो. देखो क्या होता है ना, जब हम बिजनेस करते हैं ना, पैसा के पीछे मत भागो, ये टट लो. ऐसे भागो जो ऐसे कुछ लेके आओ जो लाखों करोड़ का भलाई करे. उसका भलाई से जब आप प्रोडक्ट और सर्विस लेके आएंगे तो देखेंगे पैसा आपके पीछे भागो. तो वैल्यू क्रिएशन ऐसे होता है जिसमें हमको हर टाइम सोचना पड़ेगा कि मैं नया क्या दे रहा हूँ,
न्यू क्या है? आज देखो मैडम ने वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट देख रहे थे, नया नया कुछ लेके आए, बट उसको अगर स्केबल ना करे तो कैसे आगे बढ़ेंगे बिजनेस? धंधा कैसे होगा? 10-20-100 बार दिया तो अपने बाल को ऑर्डर आएगा, कहाँ से देंगे? Absolutely correct. Absolutely correct. So I'll just up. If I'm not wrong, sir will tell me if I'm wrong. The gist of what sir is saying. हम लोग बोलते हैं कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, पर यहाँ पे देखिए हम लोग कुएं को प्यासे के पास लेकर आ गए हैं, ठीक है? So we all require investment, not only to start, but as sir said, scale up our business. So that is the reason. Sir said that he or NSIC or government is not only helping the MSMEs which are existing, they are ready to help startups. हम लोग सोचते हैं investment नहीं है, पैसा नहीं है, how to scale. But government is sitting here. Organizations like NSIC are there to help you. Okay? So what did sir say? We need to know our valuation. Once we know our valuation, we can go further. So, by and by, what we can do is, so he even said that innovation is very, very important. We have to use our own products, showcase our own products. So much of mentoring, in a short speech, he has told us so much about it. I'm sure that we have learned a lot. We'll come back to sir, but before sir, that we'll move on to Sri Sharad ji. And Sharad ji, who is the owner of a jewelry brand, he'll be telling more about that. And now we'll be hearing from him. Okay, so if anybody is there who wants to know more about jewelry, after sir says, Sharad ji says, definitely we will be taking your questions. Good evening everyone. Has been spoken about my Veshbhusha, and to a very honest extent this guy has taken a lot जो मुझे बोलना था, but I'm very happy. Global is the new term. Narendra Modi ji, our own excellent honorable Prime Minister, is speaking about why go global, why not local, correct? So on the same lines I'll be speaking some few words. तो मैं जब आया यहाँ पे तो किसी ने मुझसे पूछा कि are you from Tamil Nadu? I told her that okay, I'm an Indian, but my patent answer to this is I come from the land of Kali. This is the land of Kali. This is the land of Durga. And huge round of applause to the Masa Forum and to the CWTA and the entire women's entrepreneur and the organization for doing such a marvelous job and to understand the smallest intricacies and to honor, felicitate people behind the scene. You are a prime example, ma'am, coming from House of Champion and still producing year on year. I don't know when will you stop or when you will stop. जैसे मैं room में enter किया, I could see my own protege, mentor, Mamta ma'am, and I was totally shocked and surprised pleasantly. But yes, if आपको शायद नहीं पता होगा इस room में, she is India's first women CS president. So huge round of applause. And बहुत साल पहले हम जी एक्चुअली मासा फोरम को इनके मेंटर्स ही पावरफुल बनाते हैं. शी इज आल्सो मेंटर ऑन बोर्ड विद मासा. Coming back to my subject, इन्होंने बोला कि कुछ नया करेक्ट. सो अगर आप कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी 3 Idiots, उसमें कहा था कि आप सफलता के पीछे नहीं भागिए, सफलता के पीछे नहीं भागिए, काम करते जाइए, सफलता आपके पीछे आ जाए. सो इस इंडस्ट्री ने, इस डेकेड ने एक नया प्रोडक्ट दिया, उसको कहते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स. वी आर फ्रॉम दैट. इन्फिनिटी जूल्स कम्स फ्रॉम लैब ग्रोन डायमंड्स. इस रूम में बहुत लोगों ने सुना होगा व्हाट आर लैब ग्रोन डायमंड्स, बट दे स्टिल डू नॉट नो इन वर्ड्स व्हाट इज अ लैब ग्रोन डायमंड. किसी से पूछेंगे पत्थर है, बेकार है, कुछ नहीं है. Diamond is a crystallized form of carbon. Diamond क्या है सर? It's a crystallized form of carbon. जो भी हीरा जानते हैं थोड़ा भी, diamond is nothing. उसी चीज को जब आप सर लैब में बनाएंगे, सेम प्रेशर में, टेम्परेचर में, if you will replicate, mimic the same conditions, you will get what is called as a lab grown diamond. Visually indistinguishable. Optical, chemical characteristics are same. Physicians out here, scientists out here, everyone out here would be understanding what are atomic formula of a diamond, correct? Carbon related. It's nothing but just a crystallized form of
carbon is called as a diamond. When it is made in the same process with HPHT, it's called as an atom called as HPHT. High pressure and high temperature, it's called as a lab grown diamond. थोड़ा दिन पहले किसी ने हमसे वापस पूछा, सर आप लोग बताते हैं क्या लैब ग्रोन? सर नहीं सर, हम नहीं बताते. So there are institutes, bodies which will certify that to be a lab grown diamond. So sir, आप कहीं से भी अगर एग्जाम में पास करके निकले होंगे, there must be a university stamp, a seal. You may be a Xaverian, CS, जहाँ से भी आप पढ़े होंगे. तो सर डायमंड का भी कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करता है. जो सर्टिफिकेशन डायमंड का करते हैं, that's called as IGI and GIA. It's certified by IGI and GIA. So हमारा पहला क्वेश्चन विनोद जी, lab grown diamond is a real diamond? Yes. It is a real diamond made in labs. Number 2, certified by IGI and GIA. The third important question, affordability. India runs on that, and the topic to which given to us, and as he rightly mentioned, sustainable. It's an affordable, sustainable luxury. It's an ethical, affordable, sustainable luxury. There is no mining. माइनिंग नहीं करना पड़ता सर. माइनिंग अगर नहीं करना पड़ता तो कोई भी मदर अर्थ को नुकसान नहीं होता. शरद जी, सॉरी टू इंटरप्ट. एक्चुअली बहुत सारी विमेन को लग रहा है कि ये ज्वेलरी का बखान कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू दैट हम लोग को किस तरह अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना है. बिकॉज पैनल डिस्कशन आज हम लोग इसीलिए रखें, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन टू. सो ही इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग दैट कि कैसे ज्वेलरी में देखिए पूरा चेंज आ गया है, और किस तरह हम लोग लैब ग्रोन डायमंड्स में विच इज सर्टिफाइड. तो आपको भी अपने प्रोडक्ट में उत्कृष्टता लानी है एंड एवरी डे उसको नया इनोवेट करना है. दैट इज द क्रक्स बिहाइंड इट. राइट सर? एब्सोल्युटली मैम. अभी भी कुछ महिलाओं के मन में कुछ संशय जरूर होगा. मैम है शायद, मैम कुछ बोलना चाहती हैं. I would really be happy अगर कोई क्वेश्चन है. Thank you so much for your guidance. And बस मेरे को ये पूछना है कि हम लोग यहाँ पे हैं एज अ वुमेन. अभी में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नए स्टार्टअप्स प्लान कर रहे हैं और करते रहेंगे. हमारी फैमिली में भी करते हैं. हम लोग काफ़ी अनअवेयर हैं कि कैसे हम अपने एग्जीबिशंस कुछ करते हैं, ट्रेड फेयर्स, उससे वापस हम लोग कैसे. एंड प्लस हम चाहते हैं कि एक आप कुछ लिस्ट में ऑल द एवरीवन हियर कैन गेट अ लिस्ट. अभी ये चल रहा है, एवरीथिंग कमिंग टुगेदर. क्वेश्चंस बस हमें नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता है. इसका सबसे पहले कि आप हम लोग के वॉइस, हम लोग के मासा वॉइस को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं उसमें छोटे छोटे शॉर्ट्स डालती रहती हूँ. बिकॉज लेट मी टेल यू, देयर आर 900 स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर ऑल ऑफ अस. तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं कि हम लोग सब स्कीम्स जान पाए. तो मैं उसमें स्कीम्स के बारे में कंटिन्यूसली हम लोग अवेयरनेस डालते रहते हैं. देयर आर डिफरेंट पीपल ऑल्सो विद अस जो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हैंड होल्ड करना है. सो आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन बिकॉज इट हेल्प मी ऑल्सो शेयर द. लास्ट ईयर हम लोगों ने 60 MSMEs को मार्केटिंग सब्सिडी स्कीम की पूरी हैंड होल्डिंग की, एंड 60 MSMEs गॉट 1,50,000 एज रीइम्बर्समेंट फॉर देयर एग्जीबिशंस. और इस साल 60 नहीं, इस साल सर हम लोग 2 एग्जीबिशंस को ऑलरेडी करवा रहे हैं. तो एवरी एग्जीबिशन कैन रजिस्टर अप टू 60 MSMEs. तो 120 MSMEs को एडवांटेज मिलेगा, और वो लोग एग्जीबिशन भी लगाएंगे, रीच भी करेंगे, और उनका एक पैसा नहीं लगेगा. और मैं बताना चाहूँगी, सुशील भैया जो हमारे साथ हैं, ही इज़ ऑल्सो नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ व्यापार मंडल. तो जब हम लोग के साथ, या वी कैन हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. थैंक यू. हम लोग बहुत ही लकी हैं दैट ही इज़ विद अस एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट. सर कुछ बोलेंगे? मेरे को एक बात बतानी है. जैसा कि हीरा जी ने बताया, एकदम सही बताया कि उन्होंने कुएं को प्यासे के पास ले आया है. इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के पास इतनी स्कीम है, आपके पास NSIC खुद आके बैठा है. नहीं तो एक ज़माना था जो हम लोग इनके पास जाते थे किसी भी चीज़ के लिए. और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे आने वाले दिनों में. गवर्नमेंट की MSME स्कीम के अलावा स्टार्टअप पे बहुत पैसा डाल रही गवर्नमेंट, बहुत पैसा डाल रही स्टार्टअप में. इवन नॉट इन स्टार्टअप, अगर आप देखें ONDC को, इन लोग को हर हालत में
फ्लिपकार्ट और अमेजोन को टक्कर देने के ऊपर लाना है। ONDC काफी पैसा डला भी। लास्ट वीक ओनली पीयूष गोयल जी ने एक स्पेशल मीटिंग इसके लिए किया कि नहीं, मेरे को सब हम लोग साथ में थे नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के एज ए मेंबर के हिसाब से कि हम लोग को इसको आप बताओ कैसे क्या स्कीम करनी हम लोग को आगे लेके आना है। गवर्नमेंट बहुत पैसा हेल्प करने के लिए तैयार है, चाहे कोई वुमेन को कुछ नया करना हो, चाहे पुराने को एस्केलेट करना हो और कुछ बढ़ाना हो। प्रज्ञा जी ने एकदम सही कहा, आप लोग अपने क्वेश्चन जो MSME वॉइस जो अपना यूट्यूब चैनल या प्रज्ञा जी के पर्सनल नंबर में सबके पास आपके पास नंबर होगा, आप इनको क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो डेफिनेटली सिविल गोइंग टू हेल्प। वो हमारे साथ अभी हर मंडे भी अपनी मीटिंग में जुड़ती है, तो वहाँ भी हम लोग अपना क्वेश्चन रेज करते हैं। तो मेरे को ये बात बतानी आप लोग आवश्यक थी कि काम अगर करना हो, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, काम के लिए भारत सरकार का या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का भी सहयोग कहीं भी कम नहीं है। अपने को लगता है कि सहयोग नहीं है, बट आप सामने आइए तो दोनों सरकार साथ में है। बिजनेस आप आगे बढ़ाइए, बिजनेस की बहुत स्कोप है, स्पेशली हमारे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्यों स्कोप है? जो हम लोग को लगता है वेस्ट बंगाल में स्कोप नहीं है, बट वेस्ट बंगाल वी हैव द 11 करोड़ प्लस पीपल पॉपुलेशन, हाईएस्ट इन इंडिया। यूपी के चक्कर में हम आ रहे हैं। दूसरा, हमारे साथ 7 बहनें ऊपर पहाड़ पे बैठी, 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और हमारा साथ हमारे पड़ोसी 3 देश बैठे जो हमारे भी उनका काम ही नहीं चलता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिलीगुड़ी। सब काफ़ी लोगों ने आपने नाम सुना होगा, दार्जिलिंग काफ़ी लोग घूमने गए होंगे। सिलीगुड़ी का बिजनेस बंद हो जाए अगर भूटान और नेपाल से व्यापारी नहीं आए तो, और भूटान और नेपाल का व्यापार नहीं चले अगर वो सिलीगुड़ी से माल पीछे नहीं, तो बहुत स्कोप है। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, मैं इसलिए आप लोग को, हम लोग ये जो कॉन्क्लेव का पूरा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन सर विभोर जी ने भी कहा कि सब बोलते हैं कि हम लोग को पता नहीं है क्या है। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बनी टू द एम्पावर्ड वुमेन। आप लोग के माध्यम से ये जाना चाहिए 1000 और लोगों के साथ। पूछिए सर को, मैंने कहा सर मैं 1 लाख वुमेन से जुड़ी हुई हूँ। सर बोले कैसे? क्योंकि 1000 का आप यही देख रहे हैं, हर वुमेन अपने आप में 1000 लेडीज से जुड़ी हुई हैं। तो आज अपना ये दायित्व है, अपना ये फर्ज है कि हम लोग यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, हम लोग उन लोगों तक वो बात पहुँचाएं कि भाई ये इस तरह अपने पास फैसिलिटी है, दीज आर द सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, विमेन क्या बोलती हैं, मैन विमेन वो जो भी नया कुछ करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, कि भाई अपने को सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट तो है, जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी आपके माध्यम से पहुँचे। इस पूरे कॉन्क्लेव का वही पर्पस था। सुशील जी 3-4 पॉइंट बताए, आप लोग कुछ कैश किए हो क्या? नहीं मिला ऊपर से क्या? मैं बोल देता हूँ आपको। हाँ, एक देखो जो उन्होंने बताया NSIC का, आप क्या ना एक स्कीम बनाए गवर्नमेंट ऑफ स्कीम में, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम। आप डोमेस्टिक एग्जीबिशन में बाहर जाओ, उसके लिए गवर्नमेंट आपको 95% तक अप टू कैटेगरी को डिपेंड कर सब्सिडी देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ से करीब जब 2012 में मैंने करीब बंगाल का प्लस ऑल ओवर इंडिया से 16 एंटरप्रेन्योर के जाकार्ता लेके गए थे। उन लोग बहुत अच्छा बिजनेस किया। बंगाल का ही थे 5-6 लेडीज थे और कैलकाटा से 2 ऑफिसर गए थे। पूरा 100% सब्सिडी मिला उनको। कुछ दिन पहले एक IT एग्जीबिशन था साउथ कोरिया सियोल में, पर इवेंट मतलब पर स्टॉल 3 लाख रुपये सब्सिडी दिए। प्लेन फेयर, देन आपका अप डाउन खर्चा, मटेरियल ले जाने का खर्चा, स्टॉल सबसे खर्चा होता है एग्जीबिशन स्टॉल के लिए। 3x3 स्क्वायर स्टॉल कॉस्ट अराउंड 2.5 लाख। इटली में आप जानते हो मिलान में जो एग्जीबिशन होता है वहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट एग्जीबिशन होता है, और वहाँ क्या होता है बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो क्या आपका एक स्टॉल थोड़ा ही हो गया, पूरा कंट्री तक कोई लिंक और नेटवर्किंग होता है। उसमें जब गया वहाँ पर भी हम लोग को अप टू 3 लाख सब्सिडी दिए। इसके अलावा देखेंगे NSIC का कैलेंडर आता है, वी आर अंडर मिनिस्टर ऑफ MSME। मिनिस्टर ऑफ MSME का अंडर में KVIC, वायर बोर्ड, CTTC सेंट्रल टूल रूम, और आपका ये हो गया MSME DI अभी DEPO हो गया, NSIC एक लाता PSU है जो कमर्शियल, टेक्निकल एंड मार्केटिंग सपोर्ट में हेल्प करता है आपको। अब डोमेस्टिक में सब उनका एसोसिएशन है, वह कोई भी एग्जीबिशन आपका लिस्ट में नहीं है, पर कोई भी जैसे उन्होंने बोला 1.5 लाख सब्सिडी, ये हमारा मिनिस्ट्री का थ्रू आपको मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो FIO है, कैपेक्सिल, ऐसे 24 व 23 एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बाहर लेके जाते हैं सब्सिडाइज रेट पे। आपको डेलीगेट लेकर जाना है, जैसे रशिया का हमारा टाई अप हुआ है, रशिया ने 500 प्रोडक्ट्स का लिस्ट भेज दिया, भाई इंडिया में कौन बनाने दो मुझे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपके लिए दुनिया खुला हुआ है,
बस हमारे पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, आपका राइट पता नहीं है, और गवर्नमेंट तो एग्रेसिव है आपको देने के लिए, बट आपको जो हैंड होल्डिंग चाहिए, जो आइडिया, अब जो यहाँ इतना आइडिया लेके बोल रहे हो, मैडम भी बोल रहे थे मेरे पास नया आइडिया है, तो क्या है ना, हम लोग उसको फाइन ट्यून करते हैं। माशा का रोल मेन हो गया, सुशील जी का रोल और मेन हो गया, उनका ट्रेड एसोसिएशन तो आपको प्रोडक्ट अगर 10 व 20 दुकान में चला गया ना तो सेलिंग हेडेक नहीं है। इसीलिए सुशील जी को मैं आगे रखता हूँ और उनका एसोसिएशन आगे रखता हूँ, क्योंकि अगर हमारा जो वुमेन ग्रुप का प्रोडक्ट उनका अगर दुकान का थ्रू मार्केटिंग हो गया ना, एंड जो बोलता है ना हमारा लोकल फॉर वोकल, वो अगर प्रमोट हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन ही यही है कि ऐसे आपने भी बोला कि 900 स्कीम्स है जो वुमेन सेंट्रिक या स्मॉल बिजनेसेस के लिए प्रमोटिंग है, तो आपका कोई गवर्नमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जहां हम जाके पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए उसमें से कौन सी स्कीम्स आर मोस्ट यूजफुल, या कोई ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम जहां हमको बेटर गाइडेंस, बिकॉज एवरी बिजनेस इज डिफरेंट। जैसे अभी मुझे ट्रेड शो के बारे में पता चला, आई डू अ लॉट ऑफ ट्रेड शोज इंडिया एंड अब्रॉड, बट आई नेवर न्यू कि यू कुड क्लेम इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो अब ये अवेयरनेस मुझे नहीं थी, तो आई एम श्योर हर बिजनेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती है, तो कोई मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम जाके ये पता लगा सकते हैं? हर बिजनेस का चैलेंज थोड़ा यूनिक होता है, तो आपको मेंटरशिप के लिए जो है हम लोग 1-to-1 मीटिंग करते हैं। मासा फाउंडेशन भी एक प्रोग्राम रख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना देर हार्डकोर एंटरप्रेन्योर, मतलब धक्का खा के सीखे, गिरा है फिर खड़ा हुआ है, इनका जर्नी उनका जर्नी तो आसान नहीं था। आज क्या ना, गिरे थे फिर हाथ पकड़ के, पहले कोई पकड़ना नहीं था, घर वाले बच्चा शादी करो, बच्चा करो, बस हो गया, आज भी गिर सकते हैं। तो जब आप जाएंगे ना, गिरेंगे फिर खड़ा होंगे, तो आप क्या है ना, वो ट्रेड सीखना है हमको। तो हर चैलेंज के लिए सॉल्यूशन है, यहाँ पर मासा फाउंडेशन आपको हेल्प करेंगे, इनिशिएटिव तो है ही। जब भी आप आएंगे, मेरा कोई ब्रांच है, मेरे पास भी आप ऑफिस में आएंगे तो 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, और there is the key person लोकल जो मिलेगा। We have all your numbers, we will be sharing the links with you, जहाँ पे हम लोग continuous schemes के बारे में अपडेशन देते रहते हैं। And let me tell you, ये बहुत important है, इसलिए मैं ये मंच यूज कर रही हूँ 2 minutes more. Every Monday 3 PM we have an online meeting where officers from 9 ministries join and hear to our queries. लेकिन क्या होता है ना, हम लोग को पता नहीं होता है तो हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और हर क्वेश्चन का वो आंसर करते हैं। लास्ट 6 महीने से ऊपर से चल रहा है, अक्टूबर से ये ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है, एंड आई कैन टेल यू मोर देन 100 क्वेरीज हैव बीन रिजॉल्व्ड। कुछ भी हम लोग लिख के भेजते हैं, बिकॉज वी हैव पीपल ऑन बोर्ड। सुशील किया इज ऑलरेडी द मेंबर ऑफ नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड विच इज अंडर द मिनिस्ट्री, तो 9 मिनिस्ट्रीज जुड़ते हैं। तो द थिंग इज द इकोसिस्टम इज राइट, you have to take a step forward. We are here to take you up. Thank you.